بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب میں خوش آمدید۔ ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ اوپر والے خالی فلیٹ کا دروازہ بند ہوا۔ عائزہ کی گرفت ہاتھ میں پکڑے ڈائجسٹ پر مضبوط ہو گئی، لیکن اس نے نظریں ہٹانے کی زحمت نہیں کی۔ باریک لکھائی والے ڈائجسٹ پر جب تک وہ نظریں دائیں بائیں گھماتے ہوئے پڑھنا چاہتی تھی، پڑھ سکتی تھی۔ سرے شام ہی اس کے ذہن میں کوئی عجیب سا خیال چھایا تھا، جسے وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ یہ خیال عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ کافی مضحکہ خیز بھی تھا، کیونکہ بظاہر گھبرانے کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی۔ آخر مجھے کس چیز کا خوف ہے، اس نے سوچا۔ اوپر والے فلیٹ کو خالی ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ایسی آواز سننے کی اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ وہ ایک بہادر عورت تھی، لیکن آج اس کا شوہر دانش بھی نائٹ ڈیوٹی پر تھا۔ آواز سن کر وہ چونک کر رہ گئی۔ اس سے قبل بھی وہ کئی راتیں اپنے شوہر کے بغیر تنہا گزار چکی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں آج ایک عجیب سی بے چینی اس کے ذہن پر سوار تھی۔ وہ خود کو تنہا نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے بیٹے رافع اور رومی جو اس کے پاس تھے، ساتھ والے بیڈ روم میں وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ ہاں، اگر کوئی 8 اور 6 سال کے 2 بچوں کی موجودگی کو بھی تنہائی پر محمول کرتا تو وہ واقعی میں اکیلی تھی۔ تاجور ہچکچا کر رہ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون سا راستہ اسے منزل پر لے جائے گا۔ 5ویں بار ڈائجسٹ میں ایک ہی لائن پڑھنے پر عائزہ کو یکلخت احساس ہوا کہ وہ بار بار کہانی کی ایک ہی سطر پڑھے جا رہی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر ڈائجسٹ بند کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے، اس نے سوچا۔ اخبار اور ٹی وی پر نشر ہونے والی خبریں اس کے دماغ پر چھائی ہوئی تھیں، یا کوئی اور مسئلہ تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ویسے بھی اب تک تو قاتل گرفتار ہی ہو چکا ہوگا۔ ایک نئی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ نہیں بھی پکڑا تو مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی دیر تک وہ خالی ذہنی کی کیفیت میں خود سے ہی باتیں کرتی رہی۔ آخر کار ایک نتیجے پر پہنچ کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا، تبھی اس سے نجات ملے گی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے اوپر والے فلیٹ کی جانب جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اوپر والے فلیٹ میں جا کر وہ اچھی طرح سے جائزہ لینا چاہتی تھی، تاکہ جو دروازہ بے وقت کی راگنی کی طرح بج رہا تھا اسے جا کر بند کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ کو آرام مل سکتا تھا، وہ سکون کا سانس لے سکتی تھی۔ بس یہی حل ہے، اس نے خود کو اطمینان دلایا، اور پھر آہستگی کے ساتھ ڈائجسٹ کو ساتھ والی تپائی پر رکھا۔ میں اتنی احتیاط سے کیوں رکھ رہی ہوں؟ عائزہ اس بار اپنی ہی حرکت سے چڑ گئی۔ اس طرح کی احتیاط کی چندہ ضرورت نہ تھی۔ اس کے بچے جب سو جاتے تو اس طرح کی معمولی آوازیں انہیں بالکل نہیں جگا پاتی تھیں۔ نیچے گراؤنڈ فلور والے فلیٹ کی خالہ نصیرن ویسے بھی آدھی بہری تھیں، اور رات کے اس پہر اپنا آلہ سماعت اتار دیتی تھیں۔ خود کو تسلی دینے کے لیے اس نے ڈائجسٹ اٹھایا اور پھر تپائی پر پٹخ دیا، جس کی آواز واضح تھی۔ پھر وہ پکے ارادے کے ساتھ بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ ایک پرانی طرز کا مکان تھا۔ مالک مکان نے اس 3 منزلہ مکان کو کاروباری نقطۂ نظر کے تحت معمولی رد و بدل کر کے 3 علیحدہ فلیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ آج سیڑھیوں پر تاریکی چھائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عائزہ کا آگے بڑھنے کا ارادہ تو دانہ ڈول ہو گیا۔ خالہ نصیرن جلد سو جانے کی عادی تھیں۔ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کی سیڑھیوں پر لگے بلبوں کا کنیکشن ان کے گھر میں ہی تھا۔ وہ سونے سے قبل اسے کبھی بھی جلانا نہیں بھولتی تھیں۔ شاید اپنے بہرے پن کی کمی کو وہ روشنی سے دور کرنے کی کوشش کرتی، تاکہ خاموشی کے ساتھ ساتھ تاریکی کا عذاب نہ سہنا پڑے۔ عائزہ کے چند لمحے شش و پن میں گزر گئے۔ اچانک اسے ایک بات یاد آئی تو اطمینان کی ایک لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ صبح خالہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی بھانجی کے پاس جا رہی ہیں، کیونکہ اس کی بیٹی کے سسرال والے تاریخ رکھنے آ رہے ہیں۔ خالہ فلیٹ میں تنہا رہتی تھیں۔ ان کے 2 بیٹے امریکہ میں مقیم تھے۔ شاہد کی وفات ہو گئی تھی۔ اس نے دروازہ پکڑ کر باہر جھانکا تو اس کی ہتھیلیاں پسینہ پسینہ ہو رہی تھیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ خالہ نصیرن گھر پر ہیں یا نہیں؟ وہ ہوتی بھی تو اس وقت عالم بے ہوشی جیسی نیند میں ہوتی، اور اتنی دور سے تو انہیں ویسے بھی کچھ سنائی نہیں دیتا، چاہے میں کتنا پکارتی، کتنی چیخیں مارتی۔ اس کی ذہنی روح ایک بار پھر بہکنے لگی۔ اس نے ذہن میں آنے والی سوچوں کو جھٹکا راہداری عبور کر کے سیڑھیوں کے کنارے پہنچ گئی جو اوپر والے فلیٹ کی جانب جاتی تھیں۔ پورا مکان ہی خستہ حالی کا شکار تھا، لیکن سیڑھیوں کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ اس پلستر پر چلتے ہوئے کرچ کرچ کی آواز آتی تو وہ خود ہی اپنی آوازوں سے چونک جاتی،
लेकिन उस वक्त उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसके कदमों तले रौंदे जाने वाले प्लास्टर की आवाज़ में उसकी आवाज़ शामिल ना हो। यह आवाज़ उसकी घबराहट में इजाफा कर रही थी, जैसे किसी भी लम्हे किसी को उसके बारे में पता चल जाएगा। वो शायद उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रही थी, मगर कौन सी आवाज़। उसने सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद कॉरिडोर की लाइट ऑन करके बटन तलाश करके कुछ देर खामोशी से कुछ सुनना चाहा, लेकिन फिर बटन दबाते ही उसके मुंह से निकला, लानत हो, मालिक मकान ने कभी इस बिखरे प्लास्टर को ठीक करवाने की कोशिश नहीं की थी। राहदारी में फ्लैट का मरकज़ी दरवाज़ा सीढ़ियों के बिल्कुल सामने था, इसलिए उसे ढूंढने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। आयशा ने दिल ही दिल में मालिक के मकान को ज़नाना कौसनों से नवाजा कि अगर वो कम अज़ कम इन दरवाज़ों के लॉक ही तब्दील करवा देते तो उस वक्त वो बिस्तर पर आराम कर रही होती। अंदर से भी कमरा उजड़ी हालत में था। आयशा की आंखें अंधेरे में कुछ न कुछ देखने के काबिल हो चुकी थीं। अगला कमरा भी खाली था, सिवाय बेगम लगारी के इस कमरे तक कोई नहीं आता था। आज के दिन भी कुछ गैर मामूली न हुआ। दानिश हस्बे मामूल काम पर चला गया। रात को वापस न आने का उसने पहले से बता दिया था। उसके बच्चे भी अपनी अपनी कामकाज में मसरूफ़ थे। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आयशा ने सफाई सुथराई वाली रूटीन शुरू कर दी। इस मकान में बने फ्लैट्स की सफाई करना आसान नहीं था। आयशा अपने छोटे से मकान में पहले खुश रहा करती थी, लेकिन दानिश की प्रमोशन के साथ ये ट्रांसफ़र हुआ तो उसने खुद ज़िद की कि दानिश फैमिली को साथ लेकर जाए। कंपनी की जानिब से अच्छी कॉलोनी में मकान मिलना था, लेकिन अभी उसे साबिका लोगों से खाली करवाने के बाद रेनोवेशन का काम जारी था। वो भी इस कदीम जगह की सफाई में काफ़ी वक्त सर्फ होता था, लेकिन वो ज़्यादा शिकायत ना करती क्योंकि जल्द ही इसको एक बेहतरीन जगह मुंतकिल हो जाना था। उस दिन मकड़ी के जाले वगैरह साफ़ करके वो जल्द ही फारिग हो गई। बिल्डिंग के साथ ही एक छोटे से प्लॉट पर घास वगैरह लगाई, जहाँ वो अपना हरियाली का शौक़ पूरा कर लिया करती। गली के बच्चों से उसके बेटों की दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी और वो दोपहर से शाम तक बेशतर हिस्सा उसके घर में औदम मचाते हुए गुजारते। उसे ये रौनक अच्छी लगती थी, लेकिन ये भी हकीकत थी और वो आधे से ज़ायद बच्चों के नाम भी नहीं जानती थी। आयशा की पेशानी पर बल पड़ गए। वो मज़ीद गहराई से सोचने लगी। आलियान, जो कि कोने वाली दुकान के मालिक का बेटा था, राहिल शर्मिला सा ऐनक वाला पढ़ाकू लड़का जो डॉक्टर राना का बेटा था, पता नहीं दानिश उसे क्यों पसंद नहीं करता था, और मोटू सा परवेज़ जो सिर्फ उसके हाथ के बने खाने ठूंसने के लिए आया करता था। आयशा ने उसे कभी खेल में ज़्यादा दिलचस्पी लेते नहीं देखा। वो उसके हाथ के बने समोसे, पकोड़े और दीगर चटपटी चीज़ें खाने में ही रखता था। वो कोई 8-9 साल का लड़का था, लेकिन अपनी उम्र की मुनासिबत से बहुत छोटा था। कलील कदो कामत, लेकिन जर्द आँखों में दुनिया भर के तजुर्बात अयां थे। वो कोई जहांदीदा शख्सियत मालूम होता था। उसके बाल भी भूरे थे, तराश खराश भी मुनासिब अंदाज में नहीं की गई थी। चेहरे पर भी जर्दी तारी थी और वो जिस्मानी लिहाज से बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। आयशा नापसंदीदगी के बावजूद उसके कमज़ोर वजूद होने पर दिल थाम कर रह गई। माँ होने के बावजूद वो अपने बच्चों का खुराक का अज़हद ख्याल करती। ये इलाका भी ऐसे लोगों का था जहाँ कम अज़ कम कोई घराना इतनी आमदन वाला नहीं था। वो बच्चा यकीनन अपने वालिदैन की अदम तौजीही का शिकार था। इस बात ने आयशा को बेहद तकलीफ़ पहुँचाई। उसकी ममता के जज्बात उमड़ आए। वो लड़के को रोज़ कुछ न कुछ पका कर देती, लेकिन वो भी शायद ज़्यादा खाने का आदी नहीं था। तभी उसने अपने शौहर से उस लड़के के बारे में बात की। सुनिए, वो जो भूरे बालों वाला लड़का है जिसे आप स्कूल से वापसी पर साथ लाए थे, कौन लाया था? रूमी ने बड़ी बड़ी आंखें टपटपाते हुए कहा। राफे लाया था शायद। आप जानते हो उसे? आयशा ने पास बैठे रूमी से पूछा। कौन दोस्त? आयशा गहरी सांस लेकर लह गई। वो छोटा सा लड़का, भूरे बालों वाला, जिसने कुछ भी नहीं खाया। मैंने भी कुछ नहीं खाया। राफे ने उल्टा मुंह बनाया। झूठे? रूमी ने फ़ौरन उसकी बात काटी। मैंने खुद देखा था, तुमने 3 समोसे खाए थे। आयशा ने अपनी कोशिश तर्क कर दी। उसने तहैया कर लिया कि अब अगर वो लड़का घर आया तो वो खुद उससे पूछ लेगी। अजीब बात ये थी कि उसे शाम के वक्त सीढ़ियों में लड़के का साया सा महसूस हुआ, लेकिन उसने सर झटक कर इस एहसास को रद्द कर दिया। सब उस बच्चे की निगाहों के सामने मरकज़ी दरवाज़ा इस्तेमाल करते हुए इमारत से निकले थे। इसके बावजूद आयशा ने एक बार आवाज़ देकर यकीन किया कि वहाँ सिर्फ उसका वहम था, कोई इंसानी वजूद नहीं। आयशा को अब बेचैनी होती। खामखा उसने मामूली बात को जहन पर सवार कर लिया।
کہ उस भूरे बालों वाले लड़के में कोई ख़ास बात ज़रूर थी। बच्चों पर इस तरह का जुल्म उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। कोई अपनी औलाद के हवाले से मुजरिमाना हद तक गफलत का शिकार कैसे हो सकता था। कल वो यकीनन मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेगी। ये फ़ैसला करने के बाद वो डाइजेस्ट की कहानी पर नज़रें दौड़ाने लगी। उसे हमेशा ये एहसास होता कि डाइजेस्ट पढ़ते पढ़ते जब वो सो जाती है तो कोई उसके आसपास घूमता फिरता रहता है, लेकिन आँख खुलने के बाद एहसास होता कि ये वहम है। आज भी ऐसा ही हुआ। एक हल्की सी आवाज़ थी जो उसकी समातों के साथ टकरा रही थी, जैसे कोई ख़ज़ां रसीदा पत्तों पर चल रहा हो, जैसे कि उसकी जानिब ही आ रहा हो। तभी आयशा ने निहायत आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोला। वहाँ पर एक मुख्तसर वजूद ठहरा नज़र आया। आयशा के हलक से एक इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। राफे अपनी आँख खुली और नीम आँखों से उसकी जानिब देख रहा था। उसने अपनी उल्लू की मानत अपने गोल गोल दीदे घुमाए। उसकी आंखें कच्ची नींद से जागने पर अमूमन ऐसे ही फैल जाती थीं। मुझे वो छोटा लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, वो नीम ख्वाबीदा लहजे में बोला। कौन छोटा लड़का? क्या रूमी की बात कर रहे हो? नहीं, मेरे बिस्तर में घुसने वाला छोटा लड़का। रूमी आपके बिस्तर में क्यों घुस रहा है? रूमी नहीं, वो लड़का बहुत गंदा है अम्मी, मुझे चुटकियाँ काट रहा है, मेरा कंबल खींच रहा है। ओ मेरा प्यारा बेटा। आयशा को इस मासूमियत पर बेख्तियार प्यार आ गया। आयशा बिस्तर से उठी, राफे का हाथ थामकर उसके कमरे में चली आई। वहाँ आकर उसने बटन दबाकर बत्ती रोशन की। हस्बे मामूल अपने बिस्तर पर वो मुंह खोले सो रहा था। दूसरी जानिब राफे बेतरतीब सा हो रहा था, जैसे उसने ख्वाब में सोते हुए टांगें चलाई हों। बिस्तर खाली था और कंबल भी नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। ये देखकर आयशा को यकीन हो गया कि राफे ने कोई बुरा ख्वाब देखा है। उसने शाम को अपने बच्चों से सवाल किया, लेकिन राफे ने उसे कुछ खास बात नहीं बताई थी। ताहम राफे को इत्मीनान दिलाने की खातिर आयशा ने उस छोटे से कमरे का अच्छी तरह जायज़ा लिया। हत्ता कि राफे के पुरजोर इसरार पर उसने दराजों वाली मेज़ के पीछे मौजूद छोटे से खला में भी झांक कर देखा। वो इतना पतला लड़का था मामा। राफे ने हाथों के इशारे से वजाहत की तो आयशा के बदन में अदम इत्मीनान की लहर सी दौड़ गई। कमज़ोर, भूखा और जहां दीदा निगाहों वाला बच्चा उसकी आंखों के सामने लहरा गया। उसने दराज बंद की। वो भी कैसी बेवकूफ़ाना जगह पर लड़के को तलाश कर रही थी। मामा प्रॉमिस करो वो मेरे ख्वाब में नहीं आएगा। राफे ने फ़िक्रमंदी से कहा तो आयशा ने वादा किया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। राफे के किसी भी डरावने ख्वाब के बाद ये मामूल का वादा था जो पूरी रात उसे सुकून से सोने में मदद फराहम करता। रात 12:30 बजे का वक्त था। आयशा को नींद नहीं आ रही थी। तभी आयशा ने डाइजेस्ट उठाया। डाइजेस्ट से मौजूद सभी कहानियाँ तकरीबन वो पढ़ चुकी थी। उसने बेजारी से सफ़हात पलटे। जुर्म व सज़ा वाले सफ़हात पर पहुंची तो उसके सामने एक धुंधली सी तस्वीर आ गई, जिसमें एक 50 साला शख्स नज़र आ रहा था। यह तस्वीर धुंधली थी या वो उम्र में काफ़ी बड़ा था। ये एक जुनूनी कातिल था। साथ में एक घरेलू खातून की तस्वीर भी थी जो इसके कत्ल का निशाना बनी थी। आयशा की दिलचस्पी यकलख्त बढ़ गई। उसने तस्वीर के नीचे लिखे मजमून को पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई जब उसने ये पढ़ा कि ये जुनूनी कातिल जेल के पागल खाने से फ़रार हो गया है और कराची में दंदनाता फिरता है। अपने छोटे से शहर से आने की वजह से अब तक उसे ये एहसास नहीं था कि कराची बहुत बड़ा शहर है, इसलिए कराची का नाम पढ़कर उसके बदन में सरसीमगी की लहरें दौड़ गईं। मजमून में लिखा था कि बेगम जरताशा की तरह एक और मर्डर करने के बाद वो पकड़ा गया था। तब उसे अदालत में दाखिल करा दिया गया, जहां वो कई साल ज़ेरे इलाज रहा। आयशा ने अपनी उंगलियां करती हुई महसूस की। कत्ल होने वाली 2 ख़वातीन छोटे लड़कों की माएँ थीं। दोनों ही बड़े मकानों की फ्लैट में तब्दील किए जाने वाली इमारतों में रिहाइश पसीद थीं। दोनों के स्याह घुंघरियाले बाल थे। आयशा ने लरजती उंगलियों के साथ अपने बालों पर हाथ फेरा तो मज़ीद पढ़ने की हिम्मत न रही, लेकिन आंखें जैसे मजमून से चिपक कर रह गईं। आखिर ऐसे लोगों को पहली बार में फांसी क्यों नहीं देते? मज़ीद लिखा था, मैं खुद को छोटा लड़का सिर्फ महसूस नहीं करता, मैं छोटा लड़का बन जाता था। वो मेरा घर था और वो औरत मेरी जालिम माँ थी। अपने डॉक्टर को उस जुनूनी ने इलाज के दौरान बताया। अपने शिकार के घर में घुसने के बाद वो खुद को किसी वीरान गोशे में छुपा लिया करता। जब रात की तारीकी फैल जाती तब वो बाहर निकलता। अपने हाथों की गिरफ्त अपने तई अपने सौतेली माँ की गर्दन पर मजबूत करता। उसकी जान निकलने तक इंतकाम की कैफियत में डूबा रहता। आयशा ने एक झुरझुरी लेकर एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की,
फिर आंखें खोलकर तफसीलात पढ़ने लगी। उम्र 50 साल, दरमियाना कद, भूरे बाल जो कि बड़ी हद तक सफ़ेद हो रहे हैं, जर्द रंगत। एक लफ्ज़ आयज़ा के चेहरे के सामने लहराने लगा, और वो चेहरा किसी अधेड़ उम्र मर्द का नहीं, उस कमज़ोर से लड़के का था जो आज सहपहर उसके घर में खेलने आया था। मैं ख़ुद को छोटा लड़का महसूस नहीं करता, मैं बन जाता हूँ। ये मज़मून में छुपे अल्फाज आयज़ा के दिमाग में चकरा रहे थे। आगे बढ़ने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने दानिश को कॉल करने के अलावा पुलिस को भी बुलाना चाहा, लेकिन पहले वो इस मसले का हल खुद करना चाहती थी। आज भी उसे महसूस हो रहा था कि ऊपर वाले फ्लोर से कुछ अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। ना कोई कदमों की सरसराहट थी, न सीढ़ियों पर दरवाजे की चरचराहट। कदीम मकान का हर गोशा जैसे गैर मरई सुकूत का शिकार हो गया था। ये सब कुछ एकदम हुआ था। आखिर ये आयज़ा के कानों की बजाय उसकी आंखें थीं जिन्होंने उस वजूद को देखा। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की काबिल हो गई थीं। टॉर्च की रोशनी ऑन करके वो अपनी जगह साकित घर की रहदारी में खड़ी थी कि जैसे साकित होकर रह गई। कोई हौला सा था जो बेआवाज़ ऊपर से उसकी जानिब तेज़ी से हरकत करता हुआ आ रहा था। वो पहले से वहीं था और उसे महसूस तक न कर पाई। वो उसका चेहरा, उसने इतना भयानक चेहरा ज़िंदगी भर कभी नहीं देखा। बिगड़े नकूश में सारे जहाँ की नफ़रत सिमटी हुई थी, ऐसी जहर आलूद नफ़रत कि उसके चेहरे का हर नक्श जैसे स्याह पड़ गया हो। वो सीढ़ियाँ उतरने की बजाय हवा में तैरता हुआ उसकी जानिब बढ़ रहा था। वो खौफ से मुंजमद होने लगी। अब उसके कदमों की आवाज़ भी आने लगी, जैसे कोई तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा हो, बिल्ली की तरह दबे पाँव, लेकिन एक भारी वजूद की आवाज़। वो वजूद उसकी समथी आ रहा था। उसकी मुड़ी हुई उंगलियों वाला हाथ आयज़ा की जानिब बढ़ रहा था। अपने पहलू में एक खौफजदा चीख सुनकर आयज़ा अपने हवासों में लौट आई। छोटा लड़का अपने भूरे बालों के साथ वहीं पड़ा उसके साथ मौजूद था। ऐसा लगता था कि आयज़ा आज खौफ के मारे बेहोश हो जाएगी। फिर न जाने कैसे उसके अंदर एक गैर मामूली कुव्वत बेदार हो गई। न जाने खुद को बचाने से ज़्यादा उस पर ममता के जज्बात गालिब आ गए थे शायद। वो बिजली की सिरत से वहीं सीढ़ियों में लड़के की जानिब झुक कर बैठ गई, उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसके सीने से लिपटा नहीफ सा वजूद मजनू की तरह लरस रहा था। ये घुटनों के बल अचानक बैठना ही आयज़ा के निजात का ज़रिया बन गया। हमलावर होने वाला भयानक ह्योला आयज़ा तक पहुंचा और उसके झुके वजूद से टकराकर लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। उसके गिरने की आवाज़ ज़ोरदार थी। आयज़ा फ्लैट के कॉरिडोर की बजाय चीखते चिल्लाते नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जा पहुंची। फिर यकलख्त एक खामोशी छा गई। मामा, कौन है मामा, क्या हुआ? छोटे छोटे बाजू और टांगें एकदम ही आयज़ा के वजूद से लिपट गईं। ऐसा लग रहा था उसकी बाहों के घेरे में कई नन्हे वजूद मौजूद हों। उसने खुद को संभालते हुए गौर किया तो ये सिर्फ दो थे, स्याह बालों वाले उसके अपने बच्चे। फिर उसने बच्चों के खौफजदा सवालात को नज़रअंदाज किया जो वो उससे पूछ रहे थे, और पुलिस को कॉल मिलाई। पुलिस जल्द ही आ गई, उसका शौहर दानिश भी। मुर्दा आदमी की लाश को वहाँ से जब ले जाया गया तो आयज़ा के पास बताने को बहुत कुछ था। बहुत सारी वजाहतों की सफाई पेश करना थी, लेकिन एक इत्तेफाक किसी को समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने पूरी बिल्डिंग छान मारी थी, लेकिन भूरे बालों वाले लड़के को तलाश नहीं कर पाए। जाहिर है ऐसा लगता था कि भूरे बालों वाला लड़का पड़ोस में कहीं से आया था और अपने घर वापस जाने के बजाय बिल्डिंग में कहीं छुप गया। उसे तलाश रोज़गार थी, लेकिन वो ये सब हासिल नहीं कर पाया। आने वाले दिनों में किसी भी भूरे बालों वाले लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। वो अपना नामो निशान छोड़े बगैर गायब हो गया था। दानिश ने भरपूर कोशिश की कि पूरे इलाके में आयज़ा के बयान करदा हुलिये वाला लड़का मिल जाए, पर वो ना मिला। नहीं, गलत फहमी हो गई होगी, वो राफे या रूमी में से कोई होगा। दानिश ने तौजही पेश की तो आयज़ा खामोश हो गई। वो कहाँ से आया था, कहाँ गया, कोई नहीं जानता। आयज़ा को तो वो फरिश्ते की मानद लगा जिसने ऐन वक्त पर नमूदार होकर उसको एक जुनूनी कातिल से बचाया, लेकिन एक अजीब बेकली उसके वजूद में सरायत कर गई कि सारे हंगामे में वो कहीं गायब कैसे हो गया। आयज़ा चाहने के बावजूद फर्श पर बिखरे मुर्दा जुनूनी कातिल के चेहरे की मुस्कुराहट को अपने जहन से नहीं झटक पाई थी। सुना था कि मुर्दे के चेहरे को किसी भी किस्म के तासुरात के मुताबिक शक्ल दी जा सकती है, लेकिन वो मुस्कान किसी बालिग मर्द की नहीं थी। उस मुस्कुराहट में इत्मीनान था, आसूदगी थी और सुकून था। वो ऐसे लड़के की मुस्कुराहट थी जिसे बिलाखिर माँ की ममता मिल गई, और भूरे बालों वाला नन्हा लड़का हमेशा के लिए बेनिशान हो गया।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔